Hello everyone, welcome back to the online lecture series of UGC NET. This is a special for the students of commerce subject who wants to qualify their NET in commerce subject. See my dear student, in the last session we have done the types of shares in which we have gone with some equity shares, preference shares and all that. Today we are going to start the types of preference shares. So look at here, what is share capital first? It is the amount required to start a business. A joint stock company collects its capital from number of person and this collected amount is called as capital. For this purpose, company issues shares. Clear? This is what we have done in the last session. So today we are going to focus on simply types of preference shares only. So if we focus on types of shares, we have equity shares and preference shares. In the last session we have gone with deferred shares, equity shares, preference shares, right shares, bonus shares and sweat equity shares. Along with this, today we will focus on preference shares only. जो हमने आगे डिस्कस किया था अबाउट टाइप्स ऑफ शेयर्स और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि अगले सेशन में हम लोग करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स. So look at here, preference shares are those shares which are not equity shares. It is a typical definition of preference shares. These are the shares which are given preferential right for the payment of dividend and repayment of capital at the time of liquidation. देखो एकदम सिंपल भाषा में आप preference shares को समझोगे तो जो शेयर होल्डर्स है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उनको पहले डिविडेंड देना है और जब कंपनी क्लोज हो रही है उस टाइम पे उनकी कैपिटल पहले रिपे करनी है. ये हो गया बेसिक कंसेप्ट. और प्रेफरेंस शेयर के लिए जो रेट ऑफ डिविडेंड रहेगा वो फिक्स रहेगा. इसलिए आपने जो भी अब तक स्टडी किया उसमें जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसके आगे कुछ परसेंटेज लिखे होते हैं. 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 9% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 15% प्रेफरेंस शेयर्स. तो ये जो प्रेफरेंस शेयर्स के आगे परसेंटेज लिखा होता है वो होता है रेट ऑफ डिविडेंड ऑन दैट पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. सी हियर, मेनली प्रेफरेंस शेयर के जो टाइप्स है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट, मतलब रीपेमेंट जब कर रहे उसके 2 टाइप्स. ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड को पेमेंट करने में प्रेफरेंस शेयर के कैसे टाइप हो सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड और नॉन कन्वर्टेड. एंड ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट इन एडिशन टू डिविडेंड. तो मेनली जो प्रेफरेंस शेयर का डिवीजन हो रहा है वो मेनली 4 बेसिस पे हो रहा है. लुक एट हियर, ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. On the basis of payment of dividend, cumulative preference shares and non-cumulative preference shares. On the basis of conversion, we have convertible preference shares, we have non-convertible preference shares. देखो बहुत ध्यान से समझना है. On the basis of sharing profit in addition to dividend, participating preference shares एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. समझ में आ रहा है. रिडीमेबल, इररिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल एंड पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग. लेट्स लुक ऑन the each and every part. We have 8 types of preference shares: convertible, non convertible, cumulative, non cumulative, redeemable, irredeemable, participating, non participating. So let's do the convertible and non convertible preference shares. See here,
Convertible preference shares. Convertible preference shares are those preference shares which can be converted into equity shares. ठीक है, those preference shares which are converted within a certain period are called as convertible preference shares. कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी शेयर्स में. नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, those shares which are not convertible in equity shares. समझ में आ रहा है? मतलब जिस प्रेफरेंस शेयर को हम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, और जिसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. द सेकेंड बेसिस ऑफ preference share is on the basis of dividend. We have cumulative and non-cumulative. देखो यहाँ पे जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स है. तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स है कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड वो अगर माना कि किसी कंपनी का लॉस हो रहा है, इस साल लॉस हो रहा है 2 साल, तो 2 साल का जो डिविडेंड है वो क्यूमुलेट होगा, एक साथ उसको जब प्रॉफिट होगा तब उनको पे करना है. A preference shares are those when the arrears of dividend are cumulative and such dividend are paid before paying any dividend to equity shareholder. मतलब 1 साल 2 साल 3 साल का जमा हो रहा है, ऐसे जो प्रेफरेंस शेयर्स होंगे उनको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बोला जाएगा. नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स फॉर विच डिविडेंड इज नॉट क्यूमुलेटिव फॉर द फ्यूचर. इस साल में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो डिविडेंड देना है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो डिविडेंड नहीं देना है. वो जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो अगले साल नहीं पे करना है, क्यूमुलेट नहीं करना है. हियर द डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर. इफ देयर आर नो प्रॉफिट इन एनी ईयर, arrears of dividend cannot be claimed in subsequent year. It means in next year dividend cannot be claimed by the preference shareholder. मतलब डिविडेंड एक साथ में दिया जाएगा तो क्यूमुलेटिव, एक ही हर साल डिविडेंड, मतलब अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो डिविडेंड नहीं देना है, पर क्यूमुलेटिव में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो भी उस साल का डिविडेंड नेक्स्ट साल देना है जब कंपनी को प्रॉफिट होगा. तो ये हो गया हमारे क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. Now come to redeemable preference shares and irredeemable. These are the most common type of preference shares. Redeemable preference shares as per section 80 of Indian Companies Act 2013. यहाँ से आपका MCQ बन सकता है. A company limited by shares can issue preference shares which are redeemable. रिडीमेबल मतलब क्या है? एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो रीपे कर देनी है. These type of preference shares are called as redeemable preference shares. These shares may be redeemed either after a fixed period or earlier at the option of company. मतलब कंपनी जब चाहे, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होगा, उस ड्यूरेशन के अलावा अगर कंपनी बोलती है कि भाई ये हम आपको पैसे आपके वापस दे रहे हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. उसको एक पर्टिकुलर समय के बाद या फिर उससे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे दे देने. इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम बिफोर वाइंडिंग अप. मतलब जब कंपनी क्लोज होगी उसी टाइम पे उनको पैसे देने हैं. ऐसे टाइप के जो प्रेफरेंस शेयर्स होंगे वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे. They are getting preferential right for dividend and repayment of capital at the time of winding up. डिविडेंड हर साल पहले देना है, पर जब कंपनी क्लोज होगी उस टाइम पे कैपिटल पहले किसको देनी है? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. क्लियर? तो ये हो गया रिडीमेबल, इररिडीमेबल, एंड द लास्ट वन इज पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग. अभी देखो यहाँ पे नॉर्मली बच्चे मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं? पार्टिसिपेटिंग मतलब जो पार्टिसिपेट कर सकता है, पर किस में पार्टिसिपेशन? उनको एक फिक्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, उनको डिविडेंड तो देना ही है. उसके अलावा कुछ प्रेफरेंस शेयर ऐसे होंगे जो डिविडेंड से भी ज्यादा, मतलब उनको डिविडेंड तो देना ही है, उसके अलावा अगर प्रॉफिट में पार्ट रहेगा, दिस टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. पार्टिसिपेटिंग, लुक एट हियर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स which are entitled in addition to preference dividend at a fixed rate to participate in balance of profit with equity shareholder after they get a fixed rate of dividend on their shares. मतलब क्या? उनको डिविडेंड मिल जाएगा, उसके बाद भी जो प्रॉफिट रहेगा उनमें
पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कुछ पोर्शन रहेगा। एंड सच शेयर्स मस्ट बी एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मतलब ये क्लियरली रहना चाहिए कि ये जो प्रेफरेंस शेयर है वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स सिर्फ उनको फिक्स डिविडेंड देना है और कुछ देना नहीं है, और प्रॉफिट में उनका कोई पोर्शन रहेगा नहीं। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच एंटाइटल्ड ओनली टू अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एंड डू नॉट शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट। देखो यहां पे आपको एक कंडीशन याद रखनी है, द प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रिज्यूम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। मतलब जो भी प्रेफरेंस शेयर्स है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ही होंगे सभी, एक्सेप्ट कि उसके आर्टिकल्स या फिर मेमोरेंडम में शो किया होगा कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो पार्टिसिपेटिंग है। उसके अलावा सभी प्रेफरेंस शेयर्स नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। तो ये हो गए हमारे टाइप्स। कन्वर्टिबल जिसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टिबल जिसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्यूमुलेटिव जिसका डिविडेंड क्यूमुलेट करके फ्यूचर में देना है, नॉन क्यूमुलेटिव जिस साल का डिविडेंड है उसी साल देना है, रिडीमेबल एक प्रॉपर टाइम में उसको पैसे रीपे करने हैं, इरेडीमेबल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप पैसे रीपे करने हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रॉफिट में डिविडेंड से भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्ट है, नॉन पार्टिसिपेटिंग ऐसा कोई प्रॉफिट में पार्ट नहीं है, सिर्फ फिक्स डिविडेंड देना है। इसके अलावा एक होता है गारंटीड प्रेफरेंस शेयर्स। गारंटीड प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच कैरी द राइट ऑफ फिक्स डिविडेंड इवन इफ द कंपनी मेक्स नो प्रॉफिट और इनसफिशिएंट प्रॉफिट। ये जो है ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, ये फिक्स रिटर्न वाले शेयर्स हैं। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास गारंटीड प्रेफरेंस शेयर्स है तो आपको उस गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ डिविडेंड जो होगा वो आपको मिलेगा। दिस टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड एज गारंटीड प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव गॉन विथ टाइप्स ऑफ शेयर्स। हमने क्या किया था? टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, डेफर्ड शेयर्स। In today's session, we have done types of preference shares. In that we have convertible, non-convertible, redeemable, irredeemable, cumulative, non-cumulative, guaranteed preference shares and participating and non-participating preference shares. In the next session, we will do issue of share capital. नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाले हैं? इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। सी हियर, इट इज अ थॉट ऑफ द डे। टेक रिस्क इन योर लाइफ। इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। तो आपको ये करना है। क्या करना है? लाइफ में हमेशा रिस्क लेना है। अगर आप जीत रहे हो तो आप दूसरों को रास्ता दिखाओगे, मतलब आप लीड करोगे एज अ लीडर। अगर आप हारते हो तो किसी को गाइड करोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिस्क लेते रहना है, पढ़ाई करते रहना है। लर्निंग मस्ट बी कंटिन्यूस। ठीक है? शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द चैनल। टिल दैट स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।